Hello everyone, I am Bhavna Mishra Pandey. So today we are going to do textual and additional question answers of the chapter A Truly Beautiful Mind. Students, A Truly Beautiful Mind is a summary of the biography of a famous scientist Albert Einstein. So somebody has written this biography of this famous scientist and उसको chapter के रूप में एक उसका extract आपके यहाँ पे आपकी बुक बी हाइव में एक चैप्टर के रूप में ऐड किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस एंड व्हाई. तो अल्बर्ट आइंस्टीन पेटेंट ऑफिस में अपनी डेस्क ड्रॉअर को क्या कहते थे एंड क्यों. So Einstein called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics. क्या कहते थे वो अपनी desk drawer को in his office? Bureau of Theoretical Physics. Einstein was actually developing his own ideas in secret and his drawer had all the evidences which could reveal the secret. So he used to work there at the patent office. He was working there and simultaneously उसके साथ साथ वो क्या करते थे अपने own ideas खुद के ideas secretly develop करते थे and he used to keep everything that matter and all in his secret drawer, in his desk drawer. So और उसका नाम था Bureau of Theoretical Physics, उसको बोलते थे. Alright. Next question is Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को क्यों लेटर लिखा? So with the emergence of Nazis in Germany, Einstein emigrated to United States. जब जर्मनी में नाजीज बहुत ज़्यादा उनका उद्भव हो रहा था, emergence हो रहा था बहुत ज़्यादा, so he went to United States. It was the fact that the Nazis had the ability to develop the atomic bomb. So ये एक फैक्ट था कि नाजीज में ये एबिलिटी है कि वो क्या डेवलप कर सकते थे एटॉमिक बॉम्ब एंड दिस एटॉमिक बॉम्ब कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड. दैट्स व्हाई रिगार्डिंग दिस ही रॉट अ लेटर टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. इसलिए इन्होंने फॉर इन्फॉर्मिंग एंड वार्निंग ही रॉट अ लेटर टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. Next question is how did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? So what was the reaction when these bombs were this bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki? So the atomic bomb devastated means ruined the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. He was deeply shaken by the extent of destruction, means जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे ये बहुत ज़्यादा अंदर तक हिल गए थे. एंड रॉट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन. यू नो स्टूडेंट्स, मिसिव इज अ सार्वजनिक, यू कैन से सार्वजनिक लेटर उन्होंने लिखा. लेटर ऑफिशियली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर. ओके, सो ही रॉट अ लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर to the United Nation regarding this. All right. Next question is why does the world remember Einstein as a world citizen? So the world remembers Einstein as a world citizen because he believed in universal peace. Universal peace means सबके लिए शांति की वो अपील करते थे. He believed in this universal appeal. When there was the rat race for becoming atomic power, he was worried about the aftermaths of the bomb. So when there was a competition among all the countries to acquire this atomic power, so he was so much worried about after this bombing, after getting this power, what will be the results. So he was so much worried about this and shaken through this thought. He was really a world citizen who was concerned with humanity. वो एक वर्ल्ड सिटीजन उनको कहा जाता है क्योंकि वो सारी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे. दैट्स वाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. This is these some short answer type questions are also added for your benefit in the exams. This will be very helpful for you. Why did the people call Einstein a world citizen? People called Einstein a world citizen because he campaigned for peace and democracy and was agitated against arms and bombs, especially after the bombing of Hiroshima and Nagasaki. तो उनको world citizen क्यों कहा जाता है? आप कैसे भी लिख सकते हो इस आंसर को. So people called Einstein a world citizen because
ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने प्लानिंग की, किस चीज़ के लिए उन्होंने अभियान चलाया, किस चीज़ के लिए, ताकि वो पीस एंड डेमोक्रेसी सब जगह पे स्प्रेड कर सके, एंड वॉज एजिटेटेड अगेंस्ट, एजिटेटेड का मीन्स क्या होता है, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, और उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया किसके अगेंस्ट, आर्म्स एंड बॉम्ब्स, आर्म्स मीन्स हथियार वगैरह जो भी, एंड बॉम्ब्स, और स्पेशली कब, जब बॉम्बिंग हो गई थी, बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके बाद ही वॉज डीपली शेकन बाय दिस डिवास्टेशन, जो ये रुइन हुआ था, चारों तरफ बर्बादी हुई थी, रुइनिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन चलाने का सोचा अगेंस्ट आर्म्स एंड बॉम्ब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड अल्बर्ट आइंस्टीन लीव हिज स्कूल, उन्होंने अपना स्कूल क्यों छोड़ा. तो अल्बर्ट आइंस्टीन लेफ्ट हिज स्कूल बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद द एजुकेशन सिस्टम, वो एजुकेशन सिस्टम से हैप्पी नहीं थे. ही वॉज नॉट एट ईज विद द स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन ऑफ द स्कूल. सो वॉट डू यू मीन बाय दिस वर्ड रेजिमेंटेशन. रेजिमेंटेशन मीन्स यू कैन से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अनुशासन. ओके तो जो स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अनुशासन, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो किया जाता था, ही वॉज अगेंस्ट इट. ही फेल्ट सफोकेटेड, वहाँ पे वो प्रॉपरली कहते थे कि आई कांट ब्रीद इन दिस एटमॉस्फियर. और वो कैसा एटमॉस्फियर था, फुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन का, बिकॉज ऑफ विच ही हैड टू लीव स्कूल, एंड इसकी वजह से उनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड आइंस्टीन हेट स्कूल, उनको स्कूल से हेट क्यों था. ही हेटेड स्कूल रेजिमेंटेशन बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम सेंस ऑफ डिसिप्लिन. आई ऑलरेडी हैव मेक यू अंडरस्टैंड, मेड you understand about this. He felt tired and suffocated with the atmosphere. He often clashed with his teacher, and it's not mentioned in your chapter, लेकिन उनका mostly clash अपने history teacher से हुआ करता था. Next question is why does the world remember Einstein as a world citizen? The world remembers Einstein as a world citizen as he was deeply hurt by the mass destruction in Japan and campaigned for peace and democracy and worked for humanity. So, world उनको एक पूरा वर्ल्ड उनको जानता है, किस तरह से उनको याद करता है एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में. क्यों? क्योंकि वो पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में, पूरी ह्यूमन रेस के बारे में सोचते थे. एंड जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था जब उन पे जापान की 2 सिटीज़ पे बॉम्ब्स गिराए गए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, कैंपेन चलाए थे, किसके लिए, फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, एंड ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? The same is answer here. The same question is here. Why did Einstein write a letter to the American President Roosevelt? So Einstein wrote a letter to Franklin Roosevelt when the Nazis were in Germany and he had to migrate from there. Actually, he wrote the letter because of the nuclear fission in Germany made the American physicist upset that the Nazis could use an atom bomb. जब न्यूक्लियर फिशन का जर्मनी में नाजीज ने क्या किया था, डिस्कवरी कर ली थी, तो अमेरिकन फिजिसिस्ट दे गॉट अपसेट एंड दैट्स व्हाई ही रॉट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is Einstein's special theory of relativity? So this question is very very important. According to Einstein's special theory of relativity, time and distance are not absolute. उन्होंने कहा था कि ये एक जैसे नहीं हो सकते. From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy, that is E is equal to mc square. Next question is why did Einstein's playmates call him brother boring? तो आइंस्टीन के जो प्लेमेट्स थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग क्यों बोलते थे? आइंस्टीन कुड नॉट मिक्स अप विद अदर चिल्ड्रन. ही डिड नॉट फाइंड देयर गेम्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ह्यूमन से कम होकर के किस पे था, मशीन्स पे. ही ऑफन अटर्ड एवरी वर्ड ट्वाइस, और वो हर वर्ड को 2-2 बार प्रोनाउंस करते थे. He was often teased for his abnormally huge head, and उनका हेड भी बहुत बड़ा था, इसलिए भी उनको बार बार टीजिंग की जाती थी, चिढ़ाते थे उनको लोग. And so his friends nicknamed him brother boring.
Next question is, how was Einstein's private life unraveling after he finished his studies? तो आइंस्टीन की जो प्राइवेट लाइफ थी वो पूरी तरह से खराब कैसे हो गई थी अपनी स्टडी पूरी होने के बाद. ही हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट. वो जिससे शादी करना चाहते थे उनका नाम था मैरी मिलेवा, लेकिन उनकी मदर अगेंस्ट थी उसके, क्योंकि मिलेवा जो थी वो बहुत ज़्यादा उनसे ओल्डर थी, बड़ी थी, and then her son, and too intelligent. This word is TOO. All right. So और वो ये सोचती थी कि उनके बच्चे से बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मदर जो थी वो उसके अगेंस्ट थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस एंड वाई? वो अपनी डेस्क ड्रॉर को क्या बोलते थे एंड क्यों बोलते थे? तो वो अपनी डेस्क ड्रॉर को बोलते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. देन बिकॉज वो वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट थे. कहाँ पे? उस पेटेंट ऑफिस में, जो कि कहाँ पे था? बर्न में. कहाँ था? बर्न में. वेयर ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन. जहाँ पे वो, और उनका वर्क क्या था वहाँ पे? वो दूसरों के पेटेंट के लिए आई हुई जितनी भी थियरीज थी उसको देखा करते थे. सो वहाँ पे सीक्रेटली वो क्या कर रहे थे? अपने भी थियोरेटिकल जो उनकी ब्यूरो थी, जो डेस्क ड्रॉर थी वहाँ पे, वो भी साथ साथ उस जो काम वहाँ पे हो रहा था ऑफिस में उनका, उसके साथ साथ वो अपना काम भी करते थे, अपनी भी थॉट्स उसमें कलेक्ट करते रहते थे, अपनी थियरीज. नेक्स्ट इज, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? उनका क्या रिएक्शन था उसके लिए? आइंस्टीन वॉज शॉक्ड एट द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द bombing. He wrote a letter to the United Nations and suggested that there should be a world government. आइंस्टीन बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन हुआ था बॉम्बिंग के बाद, बॉम्ब्स कहाँ पे ड्रॉप किए गए थे? हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये जापान के दो सिटीज़ थी वहाँ पे. सो ही रॉट अ लेटर टू द यूनाइटेड नेशन एंड सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. एक ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन इनके इस लेटर लिखने का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, कोई इस पे एक्शन नहीं लिया गया. नाउ 2-3 long answer type questions are added here for you. Write down the achievements of Albert Einstein. So Albert Einstein was really a scientific genius. वो बहुत ही genius minded थे. He felt at home in mathematics. फेल्ट एट होम मीन्स ही यूज, वे बहुत कंफर्टेबल फील करते थे, बहुत रिलैक्सड फील करते थे. किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए. लेकिन बट ही शोड कीन इंटरेस्ट इन फिजिक्स. लेकिन फिजिक्स को वो ईगरली एंड इंटरेस्टिंगली पढ़ते थे. आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक ही स्टार्टेड वर्किंग विग्रसली. उन्होंने पूरे जोश के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था. Vigorously means पूरे जोरदार ढंग से, strongly you can say, actively you can say. With his university education he was working on relativity. Relativity की theory पे उन्होंने work किया. After his graduation he remained jobless but he gave private lessons. In 1902 he secured a job as a technical expert in patent office in Bern. Students, this is BERN, all right, you know very well. He worked at Bern, all right. So, but he went on developing his own ideas in that secret drawer, you know very well. The world showered on him honors invitations. He was honored with the Nobel Prize in 1921. Next question. Einstein was an unusual child with no indication of his potential greatness. Comment. So, Einstein जो था बचपन में बहुत ही unusual था, you can say abnormal था. किसी ने भी, किसी को भी जरा सा भी इंडिकेशन नहीं था कि उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, इतनी ग्रेटनेस का पोटेंशियल उसमें होगा. नोबडी नोड सो, वो कोई भी नहीं जानता था. सो इस पे हमको कमेंट करना है. आइंस्टीन्स हेड वाज लार्जर देन द यूजुअल हेड. ये भी एक कारण था कि सभी उसको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे. बिकॉज ही नेवर मिक्सड अप विद हिज क्लासमेट्स. कभी भी क्लासमेट के साथ मिक्स नहीं होता था. ही लेफ्ट स्कूल बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद द स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन, और जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जो भी वहाँ पे डिसिप्लिन था उससे वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था. ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज एंड थॉट हिज सिस्टर टू बी अ टॉय. और जब उनकी सिस्टर
पैदा हुई थी तब उन्होंने पूछा था, सिस्टर्स नेम वाज माजा, तो क्या पूछा था अपनी मदर से कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, बिकॉज ही वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल टॉयज. द हेडमास्टर थॉट हिम टू बी स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग, एंड उनके हेडमास्टर ने बोला उनके फादर को ही इज गुड फॉर नथिंग, मीन्स ही कांट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ एंड दैट ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, और अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते. He also told Einstein's father that whatever profession he chose would not matter because he will never make a success at anything. ये कोई भी प्रोफेशन चूज करे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सक्सेस ही नहीं हासिल कर सकता उस चीज में. This proves that Einstein was an unusual child with no indication of his potential greatness. तो बचपन की ये सारी चीजें ऐसी थी जिससे ये प्रूव होता था कि उनमें कोई भी पोटेंशियल नहीं है and he is an unusual child. Okay guys, next question is, what was the outcome? Outcome is result of Einstein's letter which he wrote to American President Roosevelt. Did his warning have any impact on America? So what was the result of that letter which he wrote to the American President? So on his colleagues incidents, उसके colleagues ने उनको बहुत ज़्यादा insist किया, बहुत उन पे जोर डाला. That's why Einstein wrote a letter to the American President Roosevelt when the Nazis were in Germany and he had to migrate from there. तो वो जर्मनी से माइग्रेट होकर के कहाँ चले गए थे, यूएस. द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन जर्मनी मेड द अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट दैट द नाजीज कुड यूज द बॉम्ब. और उनको ये हो गया था कि जब न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी हुई जर्मनी में, उसके बाद उन्होंने अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे एंड इस बात से कि नाजीज कभी भी इस बॉम्ब का यूज़ कर सकते हैं. दैट्स वाई ही वॉन्ड him of the consequences of the atomic bomb. So he wrote a letter. इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा किसको, अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, उसके कॉन्सिक्वेंसीज बताने के लिए. कॉन्सिक्वेंसीज मतलब क्या उसके आउटकम्स हो सकते, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकता है उसका. हिज वर्ड्स हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट एंड उनके वर्ड्स का ग्रेट इम्पैक्ट भी हुआ. और क्या इम्पैक्ट हुआ, अमेरिकन्स ऑल्सो डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली, कि अमेरिका ने भी एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली डेवलप कर लिया. एंड दे ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और 1945 में उसको ड्रॉप भी कर दिया एंड उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी हुआ. He wrote a long letter to United Nations and suggested that there should be a world government. वहाँ पे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि सब पे कंट्रोल कर सके, ऑल द कंट्रीज पे. This definitely helped ending the war. and इसकी वजह से क्या हो सकता है, वर्ल्ड वॉर को एंड करने में हेल्प मिल सकती है. Thank you so much students. Keep reading, stay connected. Now we will meet in our next video. Bye bye for